स्टार्ट हुआ है। Okay, so hello everyone. Today, this is the PCB for educational round 136, rated for division 2. We'll be starting with problem A. And according to this problem, हमारे पास एक n क्रॉस m की हमारे पास n क्रॉस m का एक चेस बोर्ड है, जिसमें हम एक सेल को आइसोलेटेड तब कहते हैं जब अगर मैं वहां पे एक नाइट रखूं तो वो मूव ना कर पाए। मतलब जैसे कि नाइट टू पहले टू डायरेक्शन में एक तरफ मूव करता है एंड देन परपेंडिकुलरली वन वन बॉक्स मूव करता है। तो आइसोलेटेड तब कहेंगे सेल को जब वो अपने पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में मूव करने के लिए उसके पास कोई चांस ना हो। सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास एक 1 क्रॉस सपोज 3 का एक बॉक्स है, इसमें अगर मैं एक नाइट को इधर प्लेस करूं, सो क्या मैं इसको मूव कर पाऊंगी? ऑफ कोर्स, लाइक अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं 1 इधर मूव कर दूं देन 1 इधर मूव कर दूं, लेकिन यहाँ इसके बाद मेरे पास परपेंडिकुलर जाने के लिए ऊपर या नीचे कहीं पे भी स्पेस नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू मूव। This is the case, and suppose I take a case of something like 4 cross 3. Now, if I place a knight here, will I be able to move? First, I'll go up by 2 cells, and then 1 to the right. I'll be able to move. If I keep a knight here, then also I'll be able to move. If I keep a knight here, then also I'll be able to move. So in case of 4 cross 3, in anywhere I keep a knight, I'll be able to move. So what is the basic requirement which I feel like I should have to make the knights move? The foremost things. Now, for a knight to move, suppose this is the cell, he should at least have. Suppose there are two cases. He should at least have 2 cells upwards or 2 cells down, and 1 to the right or 1 to the left. This is the initial case a cell should possess to let the knight move. A cell should have at least two cells upwards, one left or one right, whatever. So what is the suppose this is a cell, it should have at least two to the upward sides. This knight will able to move. Now what about this knight? Will this knight be able to move? Of course not. He also needs two cells to the up. He'll be able to move if he gets one more cell here. Now talking about this knight, suppose, yes, he'll be able to move. He'll go down by 2. He'll be able to move. So this is the minimum height a chess board should possess to let the knight move if in the vertical direction. Now talking about the horizontal direction. For a knight to move in the horizontal direction, he should at least need one cell to the right or one cell to the left, whatever. Like if he goes from here by 2, then he can go here by 1 and he'll be able to move. So the minimum width that a box should possess is 2 and minimum height is 4. Or in other case, suppose we consider a box like this where I have 2 rows and 4 columns. This can also be the case. This can also be considered as the minimum case because either he can go from here, 2 cells to the right, 1 cell to the up, he'll be able to move. If I consider this case, he'll go 2 cells to the right and 1 cell to the up, he'll be able to move. And yeah, so this two are the minimum cases that the box should possess
so that a knight kept at any position, it will be able to move. Uh, so this was the basic case. And if this case is not satisfied, now suppose I have a matrix, I have a box of suppose 3 cross 3. The case is not satisfied in this case. Neither of the two cases are satisfied. So now if I place a knight here, it will be able to move. Two cells to the right and one cell to the up. If I place a knight here, will it be able to move? Of course not. He has in either of the four directions, neither of the direction gives him two cells in the two cells to move. Neither of the direction gives him two cells to move. So a knight placed here will not be able to move. And if I take a case like 1 cross m, 1 cross m means whatever the number is. There is no cell to the in the perpendicular direction to let the knight move. So the basic requirement is 2 comma 4 or 4 comma 2, and if that is not satisfied, then I can get the then I'll have to print. Then the question asks me to print the the position of that isolated cell. So actually that can be easily obtained by just using, if I have n cross m, then if I do n by 2, if I do n by 2, if n is 3, if I do 3 by 2, it will give me 1.5. 1.5, I'll have to take the upper limit of 1.5, that is ceil of 1.5, that will give me 2. And this is the position of second row. And similarly, I'll have to do m by 2, that will give me 1.5, and that ceil value is 2. So 2 comma 2 is the position that can be obtained. Similarly, in this case, if I do m by 2 and n by 2, m is basically, okay, 1. If I do 1 upon 2, it will give me 0.5. 0.5 ceil is 1. And if I do 4 upon 2, that is 2. So it's 1 comma 2. This is the position where this can be considered as a position. Actually, in this 1 cross m cell, any cell can be, any of the cell is isolated. That's it. That was the logic. Okay, so here is the same code. If my m is greater than equals to 4 and n is greater equals to 2, or n is greater equals to 2 and n is greater equals to 4, it will print, the question asks me to print any of the cell if you find that none of the cell is isolated. So I just printed 1 comma 1. And if that is not the case, then I have printed ceil of m by 2 comma 0 and ceil of n by 2 comma 0. Okay, so now problem B will be discussed by Manmohan. Thank you, Ishika. Great discussion. So I'm continuing with the question B, array recovery. A question में हमें like the basic prerequisites हम बता देते हैं. Okay, हमें एक array दिया हुआ है D array. Suppose 1 0 2 5 and what is D1 is हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक array and like array A कंस्ट्रक्ट करना और उसे रिपोर्ट करना है. हमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिया हुआ है कि लाइक एरे A1 लाइक जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है A1 इज इक्वल टू D1. दैट मींस इफ दिस इज एरे D एंड दिस इज एरे A, तो A1 इक्वल टू D1 हो गया. दैट्स इट. उसके बाद हमें बोला है कि लाइक एवरी DI इज mod of AI minus AI minus 1. That means
if this is the D2, D2 will be equal to A2 minus A1. So we have to calculate what will be this A2. A2 क्या होगा? A2 is nothing but D2 plus A1. And what is D2 here? D2 is 0 and A1 is 1. So this will be 1. Similarly here, D3 is 2, A2 is 2, A2 is 1. That means here 3. Similarly यहाँ 8 होगा. So this will be our answer 1138. यहाँ पे हमें this was not the main question. Main essence of question was another thing. वो ये था कि ऐसे हम लोग के पास मल्टीपल पॉसिबल एरेस बन सकते हैं किसी किसी केसेस में. तो हमें बस ये पता लगाना है कि अगर मल्टीपल एरेस बन सकते हैं तो हमें -1 प्रिंट करना है, और अगर एक ही आंसर पॉसिबल है तो हमें उसी को प्रिंट करना है. मल्टीपल एरेस क्यों पॉसिबल है बताते हैं. सपोज हमारे पास एक नंबर ए है और हमें सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स ही लेना है. तो मेरे को अगर ए से डिफरेंस 1 पे कोई नंबर चाहिए तो अपने पास कितने नॉन नेगेटिव नंबर्स अवेलेबल है? 1 is a minus 1 and another is a plus 1. इन दोनों से जब हम a का डिफरेंस लेंगे और उसका मॉड लेंगे तो आई ऑलवेज गेट 1. ये जेई में हम लोग पढ़े कि व्हाट इज एब्सोल्यूट, दिस जो C++ में एब्सोल्यूट होता है या जो मैथ में हम लोग मॉड्यूलस यूज करते हैं, दिस द मॉड. इसका मतलब क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्टेंस. सो इफ a plus 1 या a minus 1 दोनों से जब हम लोग a का डिफरेंस लेंगे और उसका मॉड लेंगे, दैट विल बेसिकली रिप्रेजेंट मी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. सो हम लोग को ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि a से a डिफरेंस पे हमारे पास हमेशा 0 से a डिफरेंस तक हमारे पास हमेशा 2 नंबर्स अवेलेबल रहेंगे. अगर हमें बोले कि a से a डिफरेंस पे कोई नंबर चाहिए तो हमारे पास 2a भी अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल है. हमें 1 डिस्टेंस पे कुछ चाहिए तो हमारे पास 1 भी अवेलेबल है और 2a minus 1 भी अवेलेबल है. बोथ नंबर्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम a. तो ऐसे करते करते a plus 1 एंड a minus 1 यहाँ तक हमारे पास a से इक्वी डिस्टेंस 2 नंबर हमेशा आएंगे, एक्सेप्ट फॉर a. अगर बोलेगा a से 0 डिफरेंस पे कोई नंबर चाहिए तो सिर्फ आंसर a ही होगा. a से 0 डिफरेंस पे सिर्फ a ही एग्जिस्ट करता है. तो हमें बस -1 किस केस में प्रिंट करना होगा? जब हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. जैसे यहाँ पे एक केस है 263. यहाँ 2 का 2 ही हो जाएगा. ये एरे डी एरे एंड दिस इज आर ए एरे. यहाँ पे हमें बोला कि 2 से 6 डिस्टेंस पे कोई नंबर चाहिए. तो यहाँ एक एग्जिस्ट करता है 8, यहाँ एग्जिस्ट करता है -4, बट हमें नॉन नेगेटिव लेना. सो ओनली 8 इज पॉसिबल. तो यहाँ 8 आएगा, वो पक्का है. बट अब नेक्स्ट केस में हमें बोला है कि हमें 3 डिस्टेंस पे नंबर चाहिए. तो जब नंबर लाइन पे हम लोग 8 बनाएंगे तो हमें 3 डिस्टेंस पे यहाँ 2 नंबर्स मिलेंगे. 1 is 5, अनदर 1 is 11. तो अब हमारा आंसर 285 होना चाहिए या 2811 होना चाहिए. बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर करेक्ट आंसर्स. सो इस केस में हमें -1 रिपोर्ट करना है. दैट इज दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर जो यहाँ नंबर आया, जो कैलकुलेट करने पे नंबर आया, जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ 8 आया, नेक्स्ट जो हमको उससे डिफरेंस बोल रहा है वो इधर 0 होना चाहिए. 0 के केस में हम बताएं, 0 के केस में सिर्फ 2 से 0 डिफरेंस पे सिर्फ एक ही नंबर अवेलेबल है 2. नहीं तो वो इधर ये नंबर, ये जो डिफरेंस है ये 0 होना चाहिए या ये 8 से कोई बड़ा नंबर होना चाहिए, 9. 8 से 9 डिस्टेंस पे एक 17 अवेलेबल है और एक -1 अवेलेबल है. और -1 हम लोग ले नहीं सकते बिकॉज क्वेश्चन में बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेना.
तो इस केस में हमारा एक ही आंसर आ सकता है, 8 से 9 डिस्टेंस पे सिर्फ 17 अवेलेबल होगा। तो हमें बस यही चेक करना है कि जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा आंसर वेक्टर में जो वैल्यू है, वो उस उसके जो नेक्स्ट डिफरेंस है, लाइक ये A2 हुआ, हम लोग A3 कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे D3 है। तो हमें बस ये चेक करना है जो D3 है, क्या वो A2 से बड़ा है। इस केस में हमारे पास एक ही आंसर होगा, या वो D3 इक्वल टू 0 है। इस केस में भी हमारे पास एक ही आंसर होगा। एल्स अगर वो D3 जो है वो A2 से छोटा या उसके इक्वल है, तो इस बार हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और उस केस में हमें सीधा -1 प्रिंट करना है। आई होप यू ऑल गॉट द लॉजिक। तो दिस वाज द कोड फॉर दी, लाइक हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस T इनपुट लिया। उसके बाद हम लोग वेक्टर को, लाइक इनपुट जो सीक्वेंस का साइज है N इनपुट लेंगे फॉर ईच टेस्ट केस। वो सीक्वेंस को इनपुट लिया, मैंने यहाँ वेक्टर में लिया। उसके बाद मैंने एक आंसर वेक्टर क्रिएट किया, जिसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज डाल दूंगा, बिकॉज बोला था कि A1 इज इक्वल टू D1। तो ये आंसर वेक्टर है, इसमें मेरा A1। उसके बाद हम एक्चुअली इसका दरकार नहीं था, fine। तो इन केस मेरे आंसर, लाइक ये अभी एरे ऑफ 0, आंसर ऑफ 0 है। हम इसको नेक्स्ट एलिमेंट से चेक कर रहे हैं, दिस इज माई A2 एंड दिस इज माई D3। जो हम बोले थे A2 और D3 यही है। इधर मेरा D3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या मेरा A2 D3 से छोटा होना चाहिए। लाइक जो डिफरेंस है वो लाइक A2 से बड़ा आना चाहिए। इस केस में हम हमेशा उन दोनों के सम को, जैसे हम बताए कि लाइक A3 इज इक्वल टू D3 प्लस A2, तो ऐसे ही हम लोग उसको आंसर में पुश बैक करते जाएंगे, और ये हमारा सीक्वेंस बनते जाएगा। इफ कहीं भी बीच में हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो सीधा हम लोग -1 करके रिटर्न कर देंगे, हमें आगे ऑपरेशंस करने का दरकार ही नहीं है। और इन केस वो ऐसा नहीं होता, -1 वाला केस नहीं आता, तो सिंपली मेरा आंसर वेक्टर बना, और उसको ऐसे ही हम रिपोर्ट कर देंगे। तो दिस इज द एक्सेप्टेड कोड फॉर द क्वेश्चन array recovery. Okay, thank you.